Hello dear students, how are you all? Welcome back. As you all know that we are doing chapter number 2 of class 11th chemistry subject, that is structure of atom, and in continuity of this chapter today we are going to discuss about our next topic, that is quantum number. What are quantum numbers? These are the numbers which describe the position, energy, shape, orientation and spin of an electron in an atom. Basically you can say that all the information about an electron you will get from these quantum numbers. And how many quantum numbers are there? There are four types of quantum number. The first is principal quantum number denoted by n, second is azimuthal quantum number L, third is magnetic quantum number M, and spin quantum number S. And remember one thing, the first three quantum numbers has been deduced from the Schrodinger wave equation, and about Schrodinger wave equation we have learned about Schrodinger wave equation in the previous video. If you missed that video, I will provide the link in the description box. You can check the video from that link. So we can say that an atomic orbital is specified by these three quantum numbers, and the first quantum number is related to the atomic size and energy of the atomic orbital. Second quantum number is related to the shape of the atomic orbital. Third quantum number is related to the orientation in the space of the atomic orbital. And the fourth one is the characteristic property of an electron, means it describes the spinning of electron either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. And about the spinning of electron, means about spin quantum number, we will discuss in the last. Okay, so first of all we will discuss about the principal quantum number. Principal quantum number was proposed by the Bohr to explain the hydrogen atomic spectrum. Basically it describes the average distance of an electron from the nucleus. It also represents the main energy level of an atomic orbital. If we talk about the values of principal quantum number, the values start from the n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on up to 7. So far up to 7 values are known of the principal quantum number in the periodic table, and these values are designated by K shell, L shell, M shell, N shell and so on. What information we got from the principal quantum number? First of all, higher the value of n, greater will be the distance of the shell from the nucleus. ये आप लोगों ने याद रखना है कि जितनी भी जो n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियस से, उस शेल की जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा होनी है. ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस एंड सपोज अराउंड दिस न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. और बच्चों अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी वी हैव डिराइव्ड one expression that was Rn is equal to n square upon z into 0.529 n angstrom units in angstrom units. ओके, सो जैसे ही n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे r जो रेडियस उसका शेल का वो क्या है, इंक्रीज करेगा. इट मींस फॉर फर्स्ट शेल द r विल बी लेसर देन सेकंड शेल. ओके, सो ऑन जो रेडियस है वो ऐसे इंक्रीज करता जाएगा. फाइन. उसके higher the value of n, greater will be the magnitude of the energy. We also describe the formula for the energy, which was En is equal to minus 1312 by n square for hydrogen atom in kilojoule per mole. ठीक है, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा वैल्यू एनर्जी की होगी, बिकॉज देयर इज ए साइन ऑफ माइनस. ओके, माइनस साइन की वजह से ज्यादा एनर्जी, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ठीक है, एनर्जी भी क्या है, इंक्रीज करती है. ये आप लोग याद रखना प्लीज. ओके, सो नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द गिवन शेल, दैट इज इक्वल टू n 2n स्क्वायर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2n स्क्वायर, वेयर n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सपोज फॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, द नंबर ऑफ electron in the K shell will be equal to 2 into 1 raised to power 2, means ये कितना आ गया,
2. सिमिलरली फॉर दी वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 electrons will be in the second shell. Similarly for the case of n is equal to 3, there will be number of electron in the m shell which is equal to 2 into 3 raised to power 2, 3 into 3 9, 9 into 2 18. Okay, 18 electron will be in the shell number 3. And in case of n is equal to 4, that means for the n shell the number of electron will be 2 into 4 raised to power 2, 4 into 4 16, 16 into 2 32. Okay, now if for the case of n is equal to 5, the means for the k, l, m, n and o shell, the number of electron from the formula it will be कितने आएंगे यहाँ पे 2 into 5 raised to power 2, 5 into 5 कितना आ गया 25, 25 into 2 कितना आ गया 50. ओके, सो 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है n इज इक्वल टू 5 में नहीं होंगे, ये आप लोग याद रखना. यहाँ पे क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 32 से ज्यादा नहीं होते, ये आप लोग याद रखना प्लीज. ओके, और जो इसमें देखो 32 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, वो 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट शेल में शिफ्ट कर जाते हैं. इसके बारे में आप बहुत जल्द जानने वाले हो. ओके, नाउ दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम. ये क्या शो करता है मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजोमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय द समरफील्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फाइन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम. And this basically denote the sub energy level of an electron in an atom. ये क्या represent करता है sub energy level of an electron in the atom. Okay, and these sub levels are indicated by the azimuthal quantum number which is denoted by symbol L, and its values lie from 0 to n-1. कहां से कहां तक होती है 0 to n-1. इसका मतलब क्या है, अगर n की वैल्यू 1 है मतलब k शेल है, तो l की वैल्यू कितनी होगी 0. ठीक है, l की वैल्यू कहां से स्टार्ट होनी है 0. सिमिलरली अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 0 and 1. ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है देखो 2. ठीक है, n की वैल्यू 2 है. फॉर दी सेकेंड प्रिंसिपल शेल L की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब उसके इक्वल आ रही है. इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ सब लेवल्स इन ए गिवन मेन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, बट नॉट मोर देन 4 सब शेल और सब एनर्जी शेल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन एनी प्रिंसिपल शेल इन द एटम्स ऑफ द नोन एलिमेंट्स. ये आप लोगों ने याद रखना है. मतलब अभी तक जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनके लिए मैक्सिमम L की वैल्यू कितनी आ रही है, L की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम 3. ठीक है, L की वैल्यू कितनी होगी 3. ठीक है, कैसे, सपोज आपके पास n की वैल्यू 4 है. ठीक है, n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू कितनी होगी देखो 0 1 2 एंड 3. तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है L इज इक्वल टू 3. अभी तक जो नॉन एलिमेंट है, तो टोटल वैल्यूज कितनी होगी L की 4 वैल्यूज. ठीक है, सो यहां पे हम दोबारा ये एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज n की वैल्यूज 4 है तो L की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी देखो 0 1 2 एंड 3. 4 वैल्यूज आ गई. अगर L की वैल्यू 0 है तो बच्चे इसे बोलते हैं S सब शेल. क्या बोलते हैं S सब शेल. सिमिलरली अगर L की वैल्यू 1 है, दिस इज नोन एज P सब शेल. क्या बोलते हैं इसको P सब शेल. एंड फर्दर अगर आपकी L की वैल्यू 2 है तो इसे बोलते हैं हम D सब शेल. अगर L की वैल्यू 3 है तो इसे बोलते हैं हम F सब शेल. क्या बोलते हैं F सब शेल. ओके, सो यहाँ पे ये S, P, D एंड F ये क्या है, ये क्या सिग्निफाई करती है स्पेक्ट्रल टर्म्स. ये स्पेक्ट्रल टर्म्स होती हैं एंड इट इज सिग्निफाई दी शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल. S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल. ओके, अब यहां पे देखो अगर आपने N और L को इकट्ठा लिख दिया, यहां पे सपोज ऐसे लिख दिया N एंड L. N एंड L क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. क्या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. सपोज यहां पे N की वैल्यू है 4, तो N की वैल्यू 4 के लिए L, अब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L कौन कौन सी आ गई 0 1 2 एंड 3. इसका मतलब यहां पे क्या आ गया 4S. ठीक है, उसके बाद 4P
सिमिलरली 4d एंड सिमिलरली 4f, ठीक है। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n की वैल्यू यहां पे सपोज n इज इक्वल टू 4 है, तो डिफरेंट सबशेल्स हैं फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n, उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो 4f की होगी, ये याद रखना, ठीक है। उससे कम किसकी है, 4d की, फिर उसके बाद 4p एंड लास्ट में 4s की, ठीक है। अगर हम शेप्स की बात करें तो जो s सबशेल है इसकी शेप होती है बच्चे स्फेरिकल। कौन सी शेप होती है, स्फेरिकल, लाइक दिस, फाइन। और अगर हम बात करें पी सबशेल की तो इसकी डंबल शेप होती है, ठीक है, लाइक दिस, ये डंबल शेप में होता है। और जो डी सबशेल है ये होता है डबल डंबल शेप में, लाइक दिस, ठीक है। और इसकी शेप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लाइक ट्रिपली डंबल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है बच्चों यहाँ पे एल की वैल्यूज, एल इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3, ठीक है, फॉर द केस ऑफ एन इज इक्वल टू 4। नाउ बच्चों ये तो हमने बात कर ली कि एनर्जीज ऑफ द वेरियस सबशेल्स इन द सेम शेल आर इन द ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है, एस, फिर उसके बाद सबसे कम किसका हो गया एस, फिर पी, फिर डी एंड लास्ट में क्या होगा एफ, ठीक। अगर यहाँ पे सबशेल जो है उनके लिए एल की वैल्यू सेम है, ठीक है, बट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन, सपोज आपके पास एल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये आ गई एस सबशेल, ठीक है, एस सबशेल। अब देखो यहां पे अगर n की वैल्यू 1 है तो भी L 0 आना ही आना है, ठीक है। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 है तो भी L की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होनी है। लेकिन इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, इसकी n और L को इकट्ठा करेंगे तो ये कैसे आएगा 1, L 0 के लिए क्या होता है S सबशेल, तो ये आ गया 1s, और यहां पे क्या आना है 2s, ठीक है, 1s एंड 2s। अब दोनों में से किसका साइज बड़ा होना है, L की वैल्यू सेम आ गई लेकिन N की वैल्यू डिफरेंट है, जिसकी N की वैल्यू ज्यादा है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो 1s का साइज आप ऐसे शो करोगे और 2s का साइज कैसे शो करेंगे, न्यूक्लियस है इसके अराउंड ये फर्स्ट शेल होगी, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप डालते हैं, इसको हम नॉड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैप को क्या बोलते हैं, नॉड, ठीक है, ये क्या होती है नॉड, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो दिस इज द एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, एंड एज़ोमुथल क्वांटम नंबर आल्सो डिस्क्राइब द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आल्सो ये हमने डिस्कस कर लिया है, एंड द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दैट सबशेल, जो भी ऑर्बिटल्स हैं उस सबशेल में उनके जो शेप्स हैं वो भी डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। देखो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को हम L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 एंड द मल्टीपल फैक्टर इज h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो L के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ n, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है तो ये पॉइंट तो अब आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कि द एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L नॉट ऑन द वैल्यू ऑफ n, okay, so what information we got from the azimuthal quantum number, basically it gives you the value of number of subshells present in the main shell, main shell में कितनी shells हैं उसके बारे में information देता है। it also give the information about the angular momentum of electron in the given subshell, it also give the information about the shape of the various subshells present within the main energy shell, and it also explain the fine spectrum of electron, okay। now come to the third quantum number which is magnetic quantum number, कौन सा क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड बाय द लेंडे इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। अब ये ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट क्या है, इसमें क्या था, जो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, अगर ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पास करते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर इक्वली स्पेस्ड और यू कैन से क्लोजली स्पेस्ड लाइन में ऐसे क्या है, ऐसे क्लोजली स्पेस लाइन में क्या है स्प्लिट कर गई थी, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ single spectral line into number of closely spaced line in the presence of strong magnetic field, this is known as Zeeman effect,
अगर मैग्नेटिक फील्ड की जगह यहाँ पे आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड to explain this Zeeman and Stark effect, and it is denoted by small m, and basically it describe the orientation of the electron cloud. ये क्या represent करता है? Orientation of a electron cloud. If we talk about the possible orientation, then the number of possible orientation for the given orbital in a given subshell जिसकी वैल्यू है L, वो किसके इक्वल होंगी? 2L प्लस 1, ठीक है। 2L प्लस 1 मतलब कि ये भी L के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसकी कितनी वैल्यूज हैं? 2L प्लस 1, ये फार्मूला है, ठीक है। 2L प्लस 1, ठीक है। अगर सपोज आपके पास L की वैल्यू 0 है तो इसके लिए नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितनी आ जानी? देखो L की वैल्यू आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 2 into 0, ठीक है। 0 प्लस 1 मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इट्स वैल्यू लाई फ्रॉम माइनस एल, अब कहां से कहां तक लाई करती है? माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग 0 इंक्लूड करना है, ठीक। दिस कैन हैव द वैल्यूज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग 0। अब कैसे लिखेंगे? देखो सपोज आपके पास L की वैल्यू 0 है, इट मींस M की वैल्यू अब कितनी आनी है? देखो 2L प्लस 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो S सबशेल है, ठीक है, S सबशेल के लिए सिर्फ एक सिंगल ओरिएंटेशन होती है स्पेस में, सिंगल ओरिएंटेशन, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने, सिंगल ओरिएंटेशन मतलब S की शेप कैसी है? स्फेरिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल शेप जो है वो स्फेरिकल ही है। यहाँ पे S सबशेल जो है उसकी कौन सी शेप आ गई? ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप, ठीक है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ L इज इक्वल टू 1, M की वैल्यूज अब कितनी आनी है? देखो फार्मूला अगेन 2L प्लस 1, कितनी वैल्यूज आ गई? सपोज 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3, ठीक है। सो M की वैल्यू कितनी है? 3 वैल्यूज आ जानी यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? माइनस एल, ठीक है, एल के ऊपर ही डिपेंड करना है, माइनस एल प्लस एल, और इसके बीच में क्या आ जाएगा? 0 इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो 3 वैल्यूज कौन कौन सी आ गई? -1, 0 एंड प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पे कितनी ओरिएंटेशन आ गई? 3 ओरिएंटेशंस, ठीक है। 3 ओरिएंटेशन है फॉर द केस ऑफ L इज इक्वल टू 1, और L जब 1 होता है तो ये कौन सी सबशेल है? P सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से? देखो PX ऐसे बनाएंगे हम, P की डंबल शेप होती है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे बनाएंगे। ये 3 ओरिएंटेशन होगी X, Y एंड Z एक्सिस में। ये PZ हो गया, ये PY, और ये क्या है? PX, PY एंड PZ। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ L इज इक्वल टू 2, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आ गई? देखो अब कितनी ओरिएंटेशन आएंगी? 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5 ओरिएंटेशन विल बी देयर। तो कहां से स्टार्ट होनी है? -2, -1, 0 प्लस 1 प्लस 2, ओके, 5 ओरिएंटेशंस। और डी ऑर्बिटल, डी सबशेल जो है उसकी ओरिएंटेशन 5 आ गई। तो कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, एंड लास्ट में होता है DZ स्क्वायर, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं डी सबशेल के। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ L इज इक्वल टू 3, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जानी? 2L प्लस 1, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। इट मींस 7 ओरिएंटेशन है, कौन कौन सी? -3, -2, -1, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 7 ओरिएंटेशंस आ गई फॉर द केस ऑफ L इज इक्वल टू 3, ओके। बच्चे अगर हम बात करें कि दी शेप ऑफ दी डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो कौन सी है? डबल डंबल, ठीक है, लाइक दिस। देखो DXY, ये आप लोग देखो यहाँ पे ये एक्सिस बने हुए हैं, ठीक है। ये है DXY में क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है? दीज लोब्स, इसे हम क्या बोलते हैं? लोब्स, क्या बोलते हैं? लोब्स बोलते हैं, ठीक है। लोब्स आर नॉट ऑन दी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही DYZ है, उसमें भी ये लोब्स जो है ऑन दी एक्सिस नहीं है, ठीक है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ DZX, ये भी ऑन दी एक्सिस लोब्स नहीं है। बट अगर हम बात करें DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ये क्या है? ऊपर जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर लाई करती हैं,
फाइन। तो यही डिफरेंस है। और जो डी जेड स्केयर है इसमें दो लोब्स होती हैं लाइक दिस, ठीक है, एक ऐसे है और दूसरा जो है जेड एक्सिस की तरफ लाइक दिस, इसको क्या बोलते हैं हम, डी जेड स्केयर। फाइन। अगर यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 आ रही है तो l की वैल्यू कितनी होगी 0। तो n m की वैल्यूज मैक्सिमम कितनी आनी है, देखो फार्मूला क्या है m का निकालने का, 2l प्लस 1, ठीक है। ये नंबर ऑफ m वैल्यूज, ठीक है, m वैल्यूज कितनी होंगी देखो 2l प्लस 1। यहां पे अगर l की वैल्यू 0 पुट करते हो तो m कितनी आ जाएगी 1 ओनली, ठीक है। तो 1 ओरिएंटेशन विल बी देयर। और ये सब शेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब, 1s लाइक दिस, ठीक है, 1s। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड 1, ठीक है। 0 के लिए ये s सब शेल है, अगर l की वैल्यू 1 है तो p सब शेल है, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यूज भी 2 होंगी, ठीक है। एक होगी m की वैल्यू 1 और दूसरे l की वैल्यू 1 के लिए m की वैल्यूज कितनी होंगी, फॉर द केस ऑफ l इज इक्वल टू 1 m की वैल्यू कितनी होगी 3। कौन कौन सी, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू होनी है m की 0, यहाँ भी 0 थी ये, यहाँ पे कितनी होनी है -1 0 एंड +1, -1 0 एंड +1, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये होगा 2s और ये कैसे रिप्रेजेंट होगा 2p। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ n इज इक्वल टू 3, यहाँ l की वैल्यूज कितनी आ गई 0 1 एंड 2, ठीक है। l के लिए s 1 l 0 s, l1 कितना आ गया p, l2 कितना आ गया d, ठीक है। तो यहाँ भी s के लिए अब ये m की वैल्यू कौन सी है 0, एक ही ओरिएंटेशन आनी है, ठीक है। तो सिमिलरली p के लिए m की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, -1 0 एंड +1, ठीक है। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ l इज इक्वल टू 2, m की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये आ गया 3s, उसके बाद 3p एंड उसके बाद क्या आ जाना 3d, ओके। अब यहां से क्वेश्चन आएगा आपको कि वाई 2d इज नॉट पॉसिबल, 2d पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने क्या देना है यहाँ पे कि फॉर द केस ऑफ 2d n कितना है 2, तो l की वैल्यू कितनी होगी 0 एंड 1 ओनली। फॉर d सब शेल l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, बट यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है 1, ठीक है। मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है 2d इज नॉट possible, ठीक है। So this is all about magnetic quantum number. Now come to the spin quantum number. Spin quantum number was proposed by Gondsmith and Uhlenbeck, and it was proposed to explain the double line structure of alkali metal spectra. The spinning of electron, you can say the electron revolve around the nucleus. This is known as its orbital motion, and electron also revolve around the its own axis, around its own axis, ठीक है। अगर ऑर्बिटल मोशन करता है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम है, और अगर ऐसे ये अपनी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ये इसे हम क्या बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, मींस स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी in the two direction, either in the clockwise or in the anti clockwise, ठीक है। तो clockwise के लिए suppose हम प्लस हाफ अपवर्ड एरो ऐसे लगाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसे होगा फिर -1/2 एरो डाउनवर्ड, ठीक है, डाउन एरो। अगर आपके पास अब देखो एक ऑर्बिटल है लाइक दिस, ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विद ऑपोजिट स्पिन लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर। सो आप लोगों ने क्या क्या सीखा, आप देखो लास्ट में देखो हम इसको रिकैप्चुलेट करते हैं। क्वांटम नंबर्स, द पॉसिबल वैल्यूज and the significance of these quantum number. First of all, we study about the principal quantum number, which is represented by n, and its possible values start from the 1 2 3 4 and so on. It denotes the size and energy of the orbit. And azimuthal quantum number is represented by L, and its values start from 0 to n minus 1, and it denotes the sub
level and shapes of the orbital in that sub level. It also indicates the angular momentum of the electron. And the third is the magnetic quantum number, which is represented by m, and its value start from the minus L and goes up to plus L including a जीरो. मतलब माइनस एल से माइनस प्लस एल तक इसकी वैल्यू से आती है इंक्लूडिंग जीरो, एंड इट रिप्रेजेंट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन cloud. And the last is spin quantum number, which can have the values of plus 1 by 2 and minus 1 by 2. It denote the spinning of a electron. Okay, so this is all about quantum numbers. ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो कहां से स्टार्ट हुआ? n से. n इज इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन. ठीक है, इसका मतलब इसको आप नेचुरल नंबर समझो, क्योंकि नेचुरल नंबर भी वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से. ठीक है. एंड सेकंड वाज एजोमुथल क्वांटम नंबर. जो एजोमुथल क्वांटम नंबर था वो कहां से स्टार्ट हुआ? एन इज एल की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई? 0 1 2 एंड सो ऑन एन माइनस 1. अब जीरो से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं मैथ्स में? होल नंबर्स. ठीक है, कौन से नंबर्स? होल नंबर्स. एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. कौन से? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m कहां से स्टार्ट हुआ था? माइनस से. ठीक है, मतलब ऑल नेगेटिव वैल्यूज. ठीक है, एंड पॉजिटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो. ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. इसे क्या बोलते हैं? इंटीजर्स. इसका मतलब है कि जो क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. ठीक है, यू पीपल ऑलरेडी नो अबाउट इट. ठीक है, आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, इतनी सी बात है, आप लोग याद रखना. ओके, सो टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.